शामियाने के तले जज़री वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंदे शामियाने के तले जज़री वाले तो गुड मर्निंग गाइस আজি মোৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি বিশ্বৰ আনতে প্ৰান্তে থকা সমূহ ভাৰতবাসীৰ লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ভাৰতবাসী লোকৰ বাবে আজি এটা পবিত্ৰ দিন আজিৰ এই দিনটোত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে লাহোৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সভাত ভাৰতক স্বৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল গণতন্ত্ৰ বুলিলে মানুহে মানুহ শাসন কৰা বুজায় আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় এখন সংবিধান ভাৰতৰ সংবিধানখন ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰে 2 বছৰ 11 মাহ 17 দিনৰ অন্তত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতৰ সংবিধানখন বিশ্বৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বৃহত্তম সংবিধান আজি 26 জানুৱাৰী দিনটো আমি কলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে জানিবলৈ শেষলৈকে চাই থাকক আজি আমাৰ লগত আছে অভি আৰু আমাৰ লগত আৰু আগৰে আমাৰ অংকুৰ আছে অংকুৰ আৰু অংকুৰৰ লগত আৰু এজন আহিছে তো আজি আমি 26 জানুৱাৰী দিনটোত কলৈ যাই আছোঁ আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু বাকী তো আমি এতিয়া জালুকবাৰী আছোঁ এটা ৱাটাৰ ব্ৰেক ল'বলৈ ৰখিছোঁ ইয়াত তো এয়া ৱাটাৰ খাই আছোঁ ৱাটাৰ অংকুৰ আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ মান স্বাভিমান মৰম আদৰ সন্মানৰ জাতীয় পতাকা আজিৰ 26 জানুৱাৰী দিনটোত তো আজিৰ এই দিনটোত এই পতাকাসমূহ যোনে যোনে গাড়ীত লগাই বা কিবা কৰে তো এইবিলাক পেলাই নিদিব ঘৰলৈ লৈ যাব কাৰণ এইবিলাক পেলাই দিয়াটো এটা অপৰাধ তো ভিডিঅ'টো চাই থকালৈকে আমি গৈ আছোঁ আমি শৰাইঘাট হৈ কিনে এনেকৈ শৰাইঘাট দলং ওপৰেৰে যাব লাগিব এইটো চিঙিছি ন তো আমি এতিয়া শৰাইঘাট দলং হৈ যাই আছোঁ চাই থাকক আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে आजा आजा जिंदे शामियाने के तले जज़री वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंदे আমি দলৰ ওপৰত তো আজি মোৰ দিনে বেয়া বোধ হয় এই পেডেল পাতো হ'ল কি গ'ল এই অৱস্থা নালগে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মোৰ আজি গাইছ এইডালো ছিঙি গ'ল মানুহজনে টানি দিলে ছিঙি গ'ল লছে লছ মোৰ লছে লছ বোলো আজি মোৰ আমি বৰ্তমান আৰু অলপ আছে বিশ্বনাথ 9 মিনিটৰ ৰাস্তা আমাৰ পাছফালে IIT উত্তৰ গুৱাহাটী IIT কলেজ অংকুৰ কি হৈছে চাইকেলখন আমি অলপ মেৰামতি কৰিব ওলাইছোঁ অলপ চেন টেন টানি লওঁ তাৰপিছত যাই থাকিম সেইটো কাৰণে ইমান হেৰি হৈ আছে নিজের সাইকেল ভালো দেখো না আলোচনা করা হোক हो गया ভাল কৰি ল'লোঁ মোৰ পেডেল পা আৰু এখন চেণ্ডেল টানি ল'লে
গৈ নাই আৰু 9 মিনিটৰ ৰাস্তা 4 কিলোমিটাৰ আছে যাই থাকিম মৰমৰে নৈ অংকুৰে 5 লিটাৰমান পানী খালাই আহিব পাৰে বিচাৰিছোঁ মই পেডেল পাত আৰু খলকি গ'ল মই ভাবছোঁ আৰু উলিয়াই ল'ম গাইছ নালাগে আৰু এনেকুৱা পেডেল মুঠতে গাইছ যায়ে এৰিম জিংগি কি নহওক পেডেল ছিঙি যাওক চেন ছিঙি যাওক বুলি হ'লেও যায়ে এৰিম মানে তো গাইছ বেছি দূৰ নাই পালোৱে অলপ আছে আৰু চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক মন্দিৰত যায় মোক আপোনালোকক কিছুমান কথা ক'ম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক বেছি দূৰ নাই আৰু পালোৱে আহি পালোঁ এয়া আমাৰ চাইকেল পাৰ্ক কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছফালে আমাৰ মন্দিৰ তো আহক অংকুৰ আনে তো এনেকৈ আমি ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব অংকুৰ আহিছে অংকুৰ ভালকৈ চিৰিকেইটা আৰু ভাঙব পাছফালে নাম কীৰ্তন চলি আছে পৰিক্ৰমা মাৰ্গ वेलकम टू हरे थोड़ा बोलिए तो हम लोग मैं इसलिए थोड़ा बोलूँ मैं दक्षिण भारत का ठीक है ये मंदिर का नाम है हरे कृष्णा मंदिर। इस मंदिर में आने वाला को 4 चीज़ देने चाह रहा आप लोग। ये 4 चीज़ आप लोग लेके जाए तो आपका प्रार्थना पूर्ण हो जाएगा। कृष्णा जी का दर्शन, कृष्णा जी का नाम, वीडियो में देखा उसको बोलते हैं मंत्रा कार्ड। इस मंत्रा का डेली 108 बार जप करने वाला का लाइफ में नो टेंशन। शास्त्र में लिखा हुआ कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान मंदिर में नहीं, इस नाम को अंदर है। ये विषय बोलने के लिए मंदिर बनाया आप लोग, तो लोगों को पता चलेगा। बागर जाने के समय भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा, बट आप लोग इस मंत्र जप किया तो कृष्णा जी उधर आ जाएंगे। तो कृष्णा का दर्शन, कृष्णा का नाम, कृष्णा का किताब, हमारा मंदिर में ओरिजिनल भगवत गीता मिलेगा। अभी तक 40 करोड़ 80 भाषा में सेल्स हो गया। अभी भी वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग ओरिजिनल वर्जन मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगला भाषा में मेजर इधर मिलेगा। एंड 4 नंबर है कृष्णा का प्रसाद। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कृष्णा का दर्शन, कृष्णा का नाम, कृष्णा का किताब, कृष्णा का प्रसाद। ये 4 चीज़ लेके जाना।
खाते हैं रोटी सब्जी चावल, ये शरीर को जा रहा। आत्मा का क्या कहना दे रहा आप लोग बताइए। आत्मा का चाहिए हरि नाम हरि कथा। महापुरुष शंकर देव जी भी प्रचार किया इसका बारे में 700 साल के पहले। तिनसुकिया से बरबेटा के बीच में 700 नामघर बनाए। अभी कितना लोग जाते रेगुलर, सब लोग बिजी है। हाँ, इसलिए शंकर देव जी बोला 2 चीज़ करना, नाम जप करो, भागवत सुनो, लाइफ सफल हो जाएगा। इसलिए मंदिर के ऊपर क्या रखा देखिए, हरे कृष्ण मंदिर। हाँ, तो कमल के ऊपर सोराई के ऊपर एक भागवत। बट हम लोग पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए इस मंदिर में रोज 8 बजे को भागवत क्लास भी चलते हैं एवरी डे। भगवान बड़ा है, बट कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा। भगवान है तो हमको क्यों दुख क्यों आ रहा, कोरोना क्यों आ रहा। भगवान दयालु है, सर्वशक्तिमान है, हमको क्यों दुख आ रहा आप बताइए। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, कोविड पॉजिटिव होना चाहिए, मुसीबत के टाइम में होना ये घट चाहिए, है। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, क्यों आ रहा दुख। गलती किया उसका दंड मिल रहा, पाप किया उसको प्रतिकर्म है दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप क्यों किया। अज्ञान में लोग पाप करते हैं, इसलिए ज्ञान लेना किस प्रकार की किताब तो ऑटोमेटिक वो ज्ञान मिल जाए, क्या करना क्या मत करना। अर्जुन को भी कंफ्यूज था, युद्ध करना कि नहीं, इसलिए महाभारत हुआ युद्ध। बट युद्ध के बीच में उनको कंफ्यूजन हो गया, युद्ध करना कि नहीं। उस समय कृष्णा जी उनको उपदेश दिया, 40 मिनट में पूरा भगवत गीता उनको बताया कहे, एंड पूरा कॉन्फिडेंट मिल गया। ही फॉट द बैटल एंड वॉन द बैटल, युद्ध किया जीत किया। कुछ लोग सोचते हैं मंदिर गए तो क्या होगा, सन्यासी बन जाएगा, ऐसे नहीं। मैं भी इंजीनियर हूँ, सेल्समैन नहीं है। बट गीता पढ़ने के बाद पता चला पूरा वर्ल्ड का ज्ञान इस गीता का अंदर ही है। ये चीज़ हमको गीता पढ़ने के साथ पता चला। इधर हमारा मंदिर से और एक प्रोजेक्ट चल रहा, इंडिया के सबसे बड़ा रसोई घर है इस फ्लोर के नीचे। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हैं, उसका नीचे है अक्षय पात्रा फाउंडेशन। हमारा मंदिर का एक NGO प्रोजेक्ट भी चला रहा। इसके द्वारा कामरूप रूरल सरकार स्कूल बच्चों को रोज 50,000 बच्चों को मध्य भोजन भी खिलाते हैं हम। वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन। स्वामी प्रभुपाद जी, इट्स ऑल स्टार्टेड विथ अ विंडो। मतलब 1970s में एक इंटरनेशनल मेला ऑर्गेनाइज किया। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसका स्थापित आचार्य है। हाथ में सिर्फ 40 रुपया था उनका हाथ में। पूरा वर्ल्ड में 108 मंदिर बनाए। तो प्रेस वाला पूछा उनको कि इसका क्या रहस्य क्या है, तो उस समय बोला हरे कृष्ण मंत्र का मैं रोज 2 घंटा जप कर रहा हूँ, बस बाकी सब आएगा। नारायण का पाँव पकड़े तो लक्ष्मी आएगा पीछे। हाँ, लक्ष्मी मतलब पैसा, तो हमको पैसा कैसे आएगा, नारायण का नाम और कृष्ण का नाम जप करने का। तो उस समय एक ऑर्डर दिया पूरा वर्ल्ड को, किधर किधर हरे कृष्ण मंदिर है 10 किलोमीटर रेडियस में कोई व्यक्ति भूख में मत मरना, ऐसे एक इंस्ट्रक्शन दिया। बट किसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा सकते उस समय। बट 2000 में हम लोग इस्कॉन बैंगलोर राधा कृष्ण मंदिर में हम लोग 5 स्कूल को 1500 बच्चों को हम लोग अन्नदान शुरू किया। अभी 2020 चल रहा, अभी रोज 18 लाख बच्चों को मध्य भोजन खिला रहा पूरा भारत में। इस मंदिर से, इस किचन से 50,000 बच्चों को खाना खिलाते, 610 कामरूप रूरल स्कूल के लिए। अभी आइए मंदिर को अंदर, रसोई घर को अंदर। ध्यान रखिए, थोड़ा पानी है नीचे। ओके, इधर इसको बोलते किचन फ्लोर। किचन फ्लोर, हाँ, किचन एक्शन ऑपरेशन किधर जाते, उधर से चावल उधर आ गया। इधर आने के बाद 1 हफ्ता के कितना चाहिए उधर स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद इधर प्रोग्राम है, सपोज आज 40,000 बच्चों को बनाना, हर बच्चों को 80 ग्राम्स राइस देना कम से कम। सो मेजरमेंट करके देना, ज़्यादा दिया तो वेस्ट हो जाएगा, कम दिया तो शॉर्टेज हो जाएगा। सो इसको प्रोग्राम स्टीम आता है। इधर आने के बाद क्या जो चावल पानी डाला अंदर देखिए, छोटा होल है, उधर से हाई प्रेशर स्टीम अंदर घुसते। सर घुसने के समय 15 मिनट में 5,000 लोग को 500 लीटर कैपेसिटी पक्का हो जाएगा। ये सब रेडी होने के बाद ये हाथ में उतार नहीं सकते, इसलिए एक फिंगर में उसको टिल्ट कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम बनाया, उस तरफ गिरेगा जिस साइड। इधर एक कन्वेयर सिस्टम बनाया, इधर गिरने के बाद नीचे कन्वेयर बेल्ट चल रहा है। हमारे पास 3 तरह का वेसल्स है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड किचन। इधर खाना बना के हम लोग टिफिन बॉक्स में 100 लोग खा सकते हैं। बड़ा वेसल में चावल, मीडियम वेसल में दाल, छोटा वेसल में सब्जी, ऐसे 3 तरह का वेसल। दिस आर ऑल कॉल्ड AS 304 ग्रेड स्टील। स्टील में हाई क्वालिटी स्टील।
ऐसा ही स्टेनलेस स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील जंग भी आती है, अब फूड पॉइजनिंग हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए। इसलिए सर्जिकल स्टैंडर्ड सर्जरी में इसको ऐसे वाला स्टील मेटल है, उसमें हम लोग पैकिंग करके 50 किलोमीटर रेडियस को पहुँचते हैं। इस साइड बाईहटा छारियाली, दिस साइड अप टू हाजो सिटी में गौरमुख LP स्कूल तक हम लोग का मंदिर का प्रसाद किस तरह है। ये सब राइस बनाने के लिए 8 कुकर है ऐसे, देन सब्जी, देन दाल। तो दाल को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये पूरा हाई प्रेशर स्टीम में यूज़ करते हैं। अंदर एजुकेशन मिलेगा। इस सेक्शन का बोलते हैं सीजनिंग सेक्शन, क्या बोलते हैं, दाल का तड़का बोलते हैं ना, बनाने के लिए ये वाला। इसके लिए स्टाफ को कुकिंग भी इधर ही चलते हैं। आज स्कूल नहीं है तो भी हम लोग स्टाफ लोगों के लिए बना रहा। ये येलो कलर एक लाइन आ रहा ना इधर, इस सब्जी को हम लोग वेस्ट नहीं करते। सब्जी काटने के बाद सपोज हर दिन 1 टन आलू यूज करते हैं, 1 टन मतलब 1000 kg, क्योंकि इतना छिलका निकालना उसको एक मशीन है वो दिखाओ। वेजिटेबल के कटिंग को भी मशीन है, वेजिटेबल का वॉशिंग का मशीन है। वो छिलका रखेगा, हम लोग बायोगैस प्लांट है, उसमें डालने के बाद वो गैस बन जाएगा। वो गैस येलो लाइन में आएगा, वो गैस हम लोग इधर यूज करेंगे। तो यू वांट यूटिलाइज। और एक नया मशीन आया, इडली मेकिंग मशीन। 7 मिनट में 1200 इडली बनते हैं, वो भी स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एक छोटा मंदिर भी अंदर है। क्या जो इधर बनते, पहला आइटम भगवान को भोग चढ़ाएगा, देन इट बिकम प्रसाद। दैट इज अ सिस्टम। भगवान ने दिया हमको राइस दाल सब्जी, टेक्नोलॉजी में नहीं बनते ना, कोई बना रहा नहीं बनते। वेराइटीज टाइप्स ऑफ एंजॉयमेंट, हर ये वेराइटी जो खाना जाता है बच्चों के लिए, यही प्रसाद के लिए भक्तों के लिए भी। सेम अप्लाई करने का भी टाइम लगेगा। 1 टन आलू यूज करते हैं, मतलब 1000 kg रोज। तो इसलिए इसमें आलू डालने के बाद हाई प्रेशर वाटर जेट आएगा, क्लोरीनेटेड वाटर, तो पूरा सफाई कर देगा। सफाई होने के बाद आलू का लेके इसमें डाल देगा। उसको अंदर रफ सरफेस है, हाथ रख के देख सकते हैं, उसको अंदर ऐसे घूमेगा तो आलू का छिलका निकल जाएगा। तो आलू पी ले। आप लोगों का घर में कितना बड़ा है फ्रिज? 6 फुट होगा। हमारा फ्रिज का अंदर आप ही घुस सकते, तो बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। कोल्ड स्टोरेज। तो 9 बजे के पहले दिन में कट करके रेडी हो जाएगा। सुबह 4 बजे को प्रोडक्शन शुरू करने के समय इधर से सब्जी लेके डालेगा, चावल डाला, पानी डाला, सब्जी चावल दाल रेडी। सर 9 बजे को प्रोडक्शन खत्म होगा, 12 बजे को गरम गरम खाना स्कूल को पहुंचना। 610 स्कूल को 50,000 बच्चों को इस रसोई घर से खाना जाएगा। तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। हर स्टूडेंट्स को 1 साल को डोनेशन देना, तो 1200 रुपया होगा खर्चा। ऑनलाइन में भी दे सकते हैं, अक्षय पात्रा फाउंडेशन विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारा अक्षय पात्रा का चैप्टर, पूरा इंडिया का चैप्टर, उनको गवर्नमेंट अभी रिकॉग्नाइज करके पद्मश्री अवार्ड दी है। देन वी गॉट गांधी पीस प्राइज। इज IIT का स्टूडेंट है, वो लाइफ सैक्रिफाइस करके आया। मैं भी NIT का स्टूडेंट हूँ। डिफेंस में 6 साल काम करने के समय गीता पढ़ा। गीता पढ़ने के समय मैं सोचा व्हाई नॉट सर्व द नेशन to the entire world. That's why we are all joined. We don't take salary, we don't take holidays. हम लोग छुट्टी नहीं लेते, सैलरी नहीं लेते। सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक हम लोग सेवा करते हैं। हम लोग के क्या जो चाहिए हम भगवान हमको दे रहा, नॉट ओनली हमको दे रहा, 50,000 बच्चों को खिला रहा। सो यूथ वॉलंटियर्स ऑल्सो कैन ज्वाइन अवर मूवमेंट। वी विल गिव अ फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग। यू हैव टू डू सर्विस एंड एवरी डे वी कैन हियर भागवत कथा भी पढ़ सकते, सुन सकते। सो नाउ वी स्टार्टेड अवर गुरु अराउंड 30 मॉड्यूल से बच्चों लोग आ गया। वो लोग इधर ही रहते, सुबह 4 बजे को उठते एंड हमारे साथ मंगल आरती अटेंड करते, जप करते। एंड वो लोगों को NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में रजिस्टर कर दिया। टीचर इधर आके उनको पढ़ाई करते, देन भागवत गीता भागवत भी सिखाते। सो मेटीरियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों हम लोग 10 क्लास तक हम लोग पढ़ाई करते। अभी 30 स्टूडेंट सपोर्टेड आवर पीस, यू नो, अब्दुल कलाम जी, Ratan Pranab Mukherjee. all the people also supported our mission. Are still supporting. সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰে। তো এয়া ভোগ
ভাত অংকুৰে খাই আছে অংকুৰ শেষে অংকুৰ শেষ গাই খাই ভাল লাগিছে আৰু দুটা খেদি দিছোঁ দেই না নিদিয়ে ছেকেণ্ড বাৰ যদি দেই খাম আৰু ভাল লাগিছে তাৰ বাবে অলপ আহিছা আৰু দিছে গাইছ আমাৰ দ্বিতীয়বাৰ ভাল লাগিছে খাই দ্বিতীয়বাৰ हरे कृष्णा हरे कृष्णा ইফালে তিনিখন গান লৈ ল'লোঁ ঘৰত যাই পঢ়িব লাগিব কৰিলোঁ দৰ্শন আমাৰ সৰু ভাইটি আজি আহিছে আমাৰ লগত তো আমি এতিয়া ঘৰতে আছোঁ ৰাইচ প্ৰসাদ লৈ ল'লোঁ ঘৰলৈকে বিস্কিট তো গাইছ ভাল লাগিল এই দৰ্শন কৰি আমাৰ ক'বলগীয়া একোৱে নাই তেওঁ ক'লে আছে আমি যি কথা আমি ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ তেওঁ ক'লে তো ভাল লাগিল আমাৰো জানি আৰু আপোনালোক চাই যাওঁ আমি ঘৰলৈ যাই আছোঁ মাজতে আমাৰ বিহঁতৰ মামাকৰ ঘৰত ৰখিম ভাত চাত খাম আৰু গাইছ এটা কথা ইয়াতে প্ৰসাদ বিলাই আছিল অংকুৰে কৈ আছে যে মোক আৰু একবাৰ ল'ব অংকুৰ তাৰপিছত কি বোলে মই প্ৰসাদটো খোৱাৰ কথা আৰু এই য'ত মানে মই ভোগটো দি আছে তাতে সুধিব গৈছিল আমি ঘৰলৈ নিব পাৰি না মানুহজনে কৈছে বোলে 200 টকা ঘৰলৈ নিলা এতিয়া নেনু কৰিছে শিপিৰা নিব খোজে এই যোৱাবাৰ ভ্লগটো দেখছে 30 টকাত মাংস ভাত লাগে এইবাৰো সেনেকা আহিছে তো কি ঘৰলৈ অনাৰ মাথা মাৰিছিল এতিয়া মোৰ বিষয়ে অলপ বেয়াকৈ ক'ব আমাক চাহ খাবলৈ দিলে অংকুৰ খিচিৰি এতিয়া আৰু খিচিৰি খাব দিলে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো এনজয় কৰা নাছিলোঁ মই খাই আছোঁ দি কাটছোঁ দি ভিডিঅ'টো এখন অংকুৰত থালি শেষ 2 ছেকেণ্ডত তো এইখিনি খাই লৈ ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম